उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम आया था, पीरियड आया था जिसमें पूरा बैन लगाया गया था ड्रोन इंडस्ट्री में। जब वो स्टूडेंट 10th पास होगा, जैसे ही उसका 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाता है, सो वो ऑलमोस्ट 12th पास होगा ही होगा, दैट्स फॉर श्योर। बट उसके टेक्निकल स्किल्स इतने ज़्यादा एनहांस नहीं हुए होते। Greetings of the day to all the viewers around the world. Welcome to our first episode of All Things Drone by Drone Gyan. For the opening blockbuster, I have with me Mr. Omkar Barge, a DGCA certified drone instructor. He is currently one of the most important trainers at Dronacharya Aerial Innovations, and he has trained over 100s and beyond drone pilots to take up their dream careers. He is certainly my drone guru when it comes to knowing anything about drones. Hello, Omkar sir. Welcome to our show. How are you? Hello. Hi, Subhashish sir. Good evening, all. And thank you for this wonderful introduction. Right. Thank you, Omkar sir. I'll put you straight into the spotlight. Right, Omkar sir. So, starting with the $1 million question. You know, when you look at drone industry 3-4 साल पहले, it was nothing. Versus if you look at now, it has evolved over the years. तो आपके हिसाब से, you know, what has happened in the last couple of years which has seen this revolutionary transformation? Very nice question, Subhashish sir. So, हम सबको पता था कि आई गेस इंडिया में ड्रोन कल्चर स्टार्ट हुआ था तब पीपल ट्राई टू बाय फैंटम 4, वो सारे बड़े बड़े ड्रोन्स. नाउ दैट ड्रोन इज स्टिल यूज्ड इन GIS सर्वेज एंड ऑल, बिकॉज उसके अलग फंक्शंस थे. धीरे धीरे करके सेक्टर्स बढ़ने लगा, पीपल आर परचेसिंग ड्रोन्स, थोड़े बहुत एक्सीडेंट्स हुए. उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम आया था, पीरियड आया था जिसमें पूरा बैन लगाया गया था ड्रोन इंडस्ट्री में. एंड जो भी हमारे यूट्यूबर्स हैं इंडिया के, वो भी ड्रोन्स शॉर्ट्स अपने यूट्यूब के वीडियोस में इंक्लूड कर रहे थे धीरे धीरे. एंड दैट इज रियली गुड, मीन्स दैट इज अ हेड टर्नर, और यू कैन चेंज ऑफ ओवरऑल सिनेरियो फॉर अ वीडियो इन टर्म्स ऑफ वीडियो पर्सपेक्टिव. उसके बाद 2021 में जैसे ही ड्रोन रूल्स अनाउंस हुए तो लोगों को थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा कि व्हाट आर द रूल्स विच यू हैव टू फॉलो, क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी. उसके बाद पीपल आर परचेसिंग इंडियन ड्रोन्स, और उसके बाद टाइप सर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इवॉल्व हुई. राइट नाउ अभी के लिए तो स्टिल पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड थ्रू RPTOs और थ्रू पर्सनल इंटरेक्शंस. तो उसको टाइम लगेगा थोड़ा, एंड दिस थिंग्स विल go forward slowly. Right. So I think आपने एकदम सही जगह पे हिट किया है. You know, not only in terms of you know, type certification, not only in terms of the general ecosystem, things have changed in the last 3-4 years. So I totally agree with you on that. Now, किसी भी नए इंडस्ट्री में, you know, drones is called as a sunrise sector in India. Okay. And when people look at a sunrise sector, which is a new sector overall, generally people look at कि इसमें job opportunities क्या क्या होने चाहिए. ठीक है. So if you could give us some idea on what are the current drone opportunities that are available, and which role are high in demand? Perfect. Thank you for the question. मुझे ये question actually मतलब पूछना के लिए मैं बताने वाला था. सो राइट नाउ फर्स्ट हाई डिमांड जॉब इज RPTOs में ड्रोन इंस्ट्रक्टर्स, बिकॉज RPTOs आर गेटिंग जनरेटेड. धीरे धीरे RPTOs के नंबर भी बढ़ रहे हैं, बट उसके लिए आपको इंस्ट्रक्टर चाहिए होते हैं. टू रन RPTO यू शुड हैव मिनिमम 2 इंस्ट्रक्टर्स. तो धीरे धीरे करके इंस्ट्रक्टर्स आर गेटिंग ट्रेंड. तो दैट इज अ वेरी हाई इन डिमांड जॉब. If you have a very good skills, very good knowledge about drones, you can become an instructor. Next thing is cinematography. That is the first sector मैं बोल सकता हूँ, बट हमारे इंडिया में इतना ड्रोन सिनेमाटोग्राफी में फोकस नहीं है जितना बाहर है. Right. अभी राइट नाउ RPTOs में इंस्ट्रक्टर की डिमांड बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिनेमाटोग्राफर्स. सो cinematography is one of the important sectors. If you have a good hands on your drone and you know how to fly your equipment,
and you can do lot more capable things. आपको पता है कि इसकी capabilities क्या है, तो you can show it in terms of video format. Next thing is you can become a drone repair service, or you can open a drone repair service shop. तो whatever the drones people are purchasing like DJI हो गया, Autel हो गए, अगर ये ड्रोन क्रैश होते हैं और सम टेक्निकल ग्लिचेस हैपन, सो वो सीधा रिपेयर मैन के पास जाते हैं. एंड नॉट एवरीवन कैन रिपेयर दिस थिंग्स. Very इट शुड रिक्वायर अ गुड स्किल सेट, गुड हैंड्स ऑन टू योर इक्विपमेंट. So that is another sector. उसके पैरेलली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी काम करता है. सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पैरेलल आप बोल सकते हो कि ड्रोन रिपेयर सर्विसेज आ गए. सो एज वी टॉक्ड, अगर राइट नाउ आपको इंडिया में कोई भी लीगल ऑपरेशंस करने, लीगल सर्विस करने, सिनेमाटोग्राफी करनी है, तो आपको यूएन वाला ड्रोन चाहिए. व्हाट इज यूएन? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर. यू कैन रिलेट एज अ कार रजिस्टर्ड नंबर. यू कैन, आप कार से रिलेट कर सकते हो उससे. सो ये यूएन का प्रोसेस थोड़ा सा अभी भी लोगों को कंफ्यूज करता है. लाइक 2021 में ये यूएन कन्वर्जन, जिसके पास डैन था उन्होंने यूएन कन्वर्जन किया. वही ड्रोन्स आप अभी इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो, और एल्स यू कैन यूज टाइप सर्टिफाइड ड्रोन्स. सो इसके लिए आई हाईली रिकमेंड टू विजिट अ डिजिटल स्काई पोर्टल. तो उसके बारे में भी आई थिंक वील मेक another video on the digital sky. So there are currently around 20-25 companies which are registered as a type certified companies. So if you purchase that drone, you can do commercial flying and you can earn from that. Understood. Perfect, sir. And I think ये आपने पूरा spectrum cover किया है अभी. Not only jobs in training, but also jobs across repair and maintenance, and manufacturing has got its own charm of jobs that are out there. So I totally agree with you on this. I think ये पूरा spectrum अभी drones में आया है where people could find a lot of job opportunities. Exactly. One parallel question that goes along with job opportunities is skill sets. Because आज के डेट में खाली education से नहीं चलता है. Today it is highly skill driven atmosphere. Companies at the end of the day, they look for specific skill sets in a candidate. So आपके हिसाब से जो drone aspirants है, उनके लिए कौन से ऐसे टेक्निकल स्किल्स उनको आने चाहिए, कौन से ऐसे नॉन टेक्निकल स्किल्स पे उनको फोकस करना चाहिए? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. तो पहले तो मैं एक बेसिक ड्रोन पायलट रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता हूँ कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ ड्रोन पायलट, बेसिक एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है. तो वो 10th पास होना चाहिए. उसके बाद ही शुड हैव अ वैलिड पासपोर्ट. ये सारे डॉक्यूमेंट की चीज़ें हैं. बट अगर हम एजुकेशन बैकग्राउंड के बेसिस पे बात करें तो 10th पास इज़ नॉट दैट गुड स्टार्टिंग फॉर अ करियर इन द ड्रोन इंडस्ट्री. बिकॉज जब वो स्टूडेंट 10th पास होगा, जैसे ही उसका 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाता है, सो वो ऑलमोस्ट 12th पास होगा ही होगा, दैट्स फॉर श्योर. बट उसके टेक्निकल स्किल्स इतने ज़्यादा एनहांस नहीं हुए होते. सो ही शुड कवर हिज इंजीनियरिंग फर्स्ट. उसके बाद एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अंडरस्टैंडिंग आ जाती है. बट उसके साथ साथ इफ़ यू हैव मोर स्किल्स, तो मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ. आई हैव अ गुड टेक्निकल स्किल्स, बट उसके साथ साथ मैंने बीच में यूट्यूब चालू किया था. एंड उसके साथ आई लर्नड वीडियो एडिटिंग, एंड दैट रियली हेल्प मी इन माई करियर. मेरा डेजिग्नेशन है इन द ऑपरेशंस एंड ट्रेनिंग, बट मैं वीडियोज एडिट करता हूँ फॉर द ड्रोनाचार्य एंड ऑल. राइट. रिसेंटली आपने देखा होगा G20 का भी एक वीडियो मैंने बनाया था. दैट इज डन बाय मी. मोस्ट ऑफ द शूटिंग्स इज डन बाय मी एंड आदित्य, माय कलीग. सो दैट रियली एड्स इनटू योर पॉइंट. अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल सेट है तो यू शुड बी एबल टू प्रेजेंट इट. कंपनीज ये देखती है कि आपके पास नॉट जस्ट अ वन स्किल सेट, यू हैव मल्टीपल स्किल सेट्स. तो आपका एक अप्रोच चेंज हो जाता है इन टर्म्स ऑफ हाउ यू कैन हैंडल द सिचुएशन. देन यू शुड हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स. दैट इज अनदर थिंग. सो हाउ यू इंटरैक्ट विद द पीपल. सो जैसे ही आप RPTOs में ज्वाइन करते हो एज इंस्ट्रक्टर, सो आपको अलग अलग लोग मिलते हैं, तो उनके साथ इंटरेक्शन करना, your communication skills will be test in that field. Right, true.
वेरी राइटली सेड ओमकार सर. इनफैक्ट जैसे आपने बोला 10th पास में आई थिंक स्टूडेंट उतना मेच्योर नहीं होता है ऑन द टेक्निकल फ्रंट. एग्जैक्टली. So I think he or she should definitely spend some time to take up, let's say, engineering programs or other technical courses जहाँ पे उनका एक technical literacy develop हो. And on top of it, obviously, you have got your communication skills, which will enhance over a period of time. इसके अलावा जो आपने बोला at the end of the day, it is not only having certain fixed skill sets जो yes सबको चाहिए, but जो आपको different बनाते हैं are skill sets that you know learn by yourself. जैसे आपके केस में YouTube था, editing था. Okay. So definitely these are a couple of things that at the end of the day drone aspirants should also pursue on their front, which will make them a bit different from that of the standard competition and would definitely enhance their job opportunities. Rightly said. Drones के बारे में बात करें और startups का बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है. So definitely I would like to hear it from you, from your years of experience. ये जो ड्रोन का एक स्टार्टअप कल्चर चल रहा है अभी इंडिया में, इसके क्या यूनिक चैलेंजेस है, क्या एडवांटेजेस है एंटरप्रेन्योर्स के लिए? कुड यू टेल अस मोर अबाउट दिस? वेरी नाइस क्वेश्चन. सो मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स अभी मैन्युफैक्चरिंग एंड आरपीटीओज में उतर रहे हैं. सो दे आर गेटिंग इनटू ओपन अप आरपीटीओज. सो द्रोणाचार्य हमने भी रिसेंटली वी स्टार्टेड विद द फ्रेंचाइजी मॉडल. दैट इज अनदर थिंग. टाइप सर्टिफिकेशन में पीपल आर गेटिंग इनटू मैन्युफैक्चरिंग. सो दोनों का जो रिलेशन है एक साथ है. सो इफ यू वांट टू डू ट्रेनिंग you should have UI and drones. And UI and drones कहाँ से मिलते हैं आपको? टाइप सर्टिफाइड कंपनीज से. So that is interlinked. तो चैलेंज ये होता है आरपीटीओज के लिए कि ड्रोन प्रोक्योर करना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज अभी ये जो प्रोसीजर है दैट इज नॉट स्टैंडर्डाइज. मीन्स आपको ड्रोन परचेज करने के लिए यू शुड हैव टू कम्युनिकेट विद देयर टीम. वो यहाँ पे आएंगे, दे ऑल्सो ट्रेन यू ऑन देयर इक्विपमेंट, बिकॉज आपको वो इक्विपमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है. सो इन ट्रेनिंग ऑल्सो हम ये बताते कि बिफोर फ्लाइंग एनी इक्विपमेंट यू शुड यूज द यूजर मैनुअल ऑफ द इक्विपमेंट, बिकॉज हर एक गाड़ी का चालू करने का तरीका, टू स्टार्ट अ व्हीकल इट्स डिफरेंट. ऑटोमेटिक व्हीकल एंड मैनुअल व्हीकल को चलाने का तरीका इज कम्प्लीटली डिफरेंट. सो दैट थिंग इज देयर. आरपीटीओज में यू रिक्वायर इंस्ट्रक्टर्स. सो मैंने ये बहुत सारे आरपीटीओज में देखा है कि जो हेड होता है आरपीटीओज का, ही फर्स्ट ट्रेन हिमसेल्फ और वो भी ट्रेनिंग लेते हैं. कोई कोई केस में ऐसा होता नहीं है. दे हायर इंस्ट्रक्टर्स एंड दे गिव ट्रेनिंग. दैट इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग. मैन्युफैक्चरिंग इज अनदर सेक्टर. Manufacturing में you require more number of teams, because you have to design the drone, you have to calibrate it, you have to tune it, part sourcing करना, repairing के लिए you should have hire more people. ये चीज़ हमारे RPTOs में नहीं है. RPTOs को रन करने के लिए आपको मिनिमम कॉस्ट चाहिए होता है. स्टार्टिंग कॉस्ट ही लगता है, बट टू डू अ मैन्युफैक्चरिंग यू शुड हैव अ बजट. दैट इज द टू डिफरेंट थिंग्स. And that is the main advantages or disadvantages of individual sectors. Right. And thank you so much, Omkar sir, for giving this idea कि जब भी हम लोग अभी startups की बात कर रहे हैं, I think there are two hot cakes in the market. एक है manufacturing, एक है RPTO, and thank you so much for giving us more insights onto these particular areas. Now, हर एक नए सेक्टर के कुछ advantages और disadvantages होते हैं. एंड स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द डे कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर जाते हैं. ठीक है, दे शुड हैव रिसर्च मोर ऑन सम थिंग्स, कुछ चीजें वो मिस कर जाते हैं. सो आपके हिसाब से एज एन इंस्ट्रक्टर व्हाट विल बी योर एडवाइस टू एस्पायरिंग ड्रोन प्रोफेशनल्स कि वो क्या ऐसी चीजें हैं जिनको वो अवॉइड करनी चाहिए एट अ वेरी अर्ली स्टेज इन देयर ड्रोन करियर्स? वेरी नाइस क्वेश्चन. सो हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, वी गिव प्लेसमेंट असिस्टेंस टू दैट स्टूडेंट एज वेल. बट समटाइम्स क्या होता है कि कोई कोई कंपनीज थोड़ा सा इतना मैच्योर नहीं होती
Hmm. when treating their employees. Hmm. So we also have a group, a pilot group. तो आप भी उसमें Hmm. ऐड होंगे आई गेस. तो Yes, इफ yes. यू रन इनटू द चैट्स, तो बीच में कोई तो कंपनी आया था, तो उसके बाद Mhm. किसी ने नीचे कमेंट कर दिया कि ये कंपनी ठीक से ट्रीट नहीं करता. So Right. before Mhm. applying to any companies, if you are a drone pilot, have Hmm. some good research about the company. Hmm. आपको Hmm. इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, तो फर्स्ट यू शुड हैव अ रिसर्च. आप कौन से कंपनी में जा रहे हो, वो कंपनी करती क्या है. दैट इज Hmm. द मोस्ट Hmm. इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब. Hmm. अगर वो आपके सेक्टर का है ही नहीं, तो वहां पे जाके कुछ मतलब नहीं है. Hmm. Hmm. So that is the most important thing. Next important Right. thing is, even when people getting trained, uh, rules and regulations को ठीक से follow नहीं करते. Hmm. So this Hmm. license, if you are not following the rules and regulations, तो हमारे यहाँ पे Indian airspace map 3 zones में divided है. Hmm. Is red, green and yellow. Hmm. So कौन से जोन में आपको उड़ाना है, कौन से जोन में नहीं उड़ाना है, you should be able to know about it. Right. तो सपोज आपने किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ड्रोन फ्लाई किया एंड यू गेट Hmm. कॉट, तो Hmm. अकॉर्डिंग टू द आईपीसी आपके ऊपर चार्जेस बिठाए जाते हैं एंड Hmm. योर लाइसेंस विल इम्पाउंड. बेसिकली आपका लाइसेंस पूरा खारिज किया जाएगा. Right. तो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड सिनेमाटोग्राफी में मैंने ये देखा है कि पीपल टेंड टू ब्रेक द रूल्स, दे ब्रेक द हाइट रिस्ट्रिक्शंस. रिसेंटली मैंने एक मुंबई में इंस्टा पे वीडियो देखा था. मुंबई का वर्ली सीलिंग का एक वीडियो ड्रोन पायलट ने डाला था. Hmm. Hmm. सो दैट इज कंप्लीटली इलीगल बेसिकली. Illegal. Hmm. Hmm. तो Right. ये सारी चीजें आई थिंक इंडिविजुअल शुड अवॉइड. Right. So definitely to everyone who is listening this podcast, do make sure that you follow the rules at the end of the day, because it's like you not wearing a seat belt. कभी ना तो कभी पकड़े जाओगे, और जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन बहुत बड़ा कटेगा आप लोगों का. So make sure that everyone follow the drone rules for sure. एंड मोस्ट Now, इम्पॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पे हाँ, हाँ. नीचे से पैसा नहीं दे सकते. राइट, यहाँ पे नीचे से पैसा नहीं दे सकते, यहाँ पे सीधा ओरिजिनल वाला फाइन लगता है. पावती फटेगा. एब्सोल्युटली राइट. राइट. परफेक्ट. Yeah. नाउ हमारे पूरे डिस्कशन में एक चीज आ रही है कि डीजीसीए सर्टिफाइड ड्रोन पायलट्स या डीजीसीए सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर, ये सर्टिफिकेशन क्यों चाहिए? ऐसे भी तो ड्रोन उड़ा सकते हैं सर, है ना? बट व्हाट डज दिस सर्टिफिकेशन ब्रिंग ऑन टू द टेबल एट द एंड ऑफ द डे फॉर कॉमन एस्पिरेंट्स? या ठीक है. सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट व्हाट इज डीजीसीए. तो हाँ. डीजीसीए का फुल फॉर्म भी है, मीन्स दैट स्टैंड्स फॉर समथिंग. इट्स अ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन. Right. सो हमारे जो सारे फ्लाइट्स है, कमर्शियल फ्लाइट्स और इंडियन एयर स्पेस मैप, इट्स कंट्रोल्ड बाय डीजीसीए. वहाँ के जो भी फ्लाइंग्स होते हैं, सो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय डीजीसीए. सपोज कोई एक्सीडेंट हो गया रनवे 34 में, आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन जो है हमारे, वो डीजीसीए से थे एंड दैट इज़ बेसिकली कंट्रोलिंग द ओवरऑल सिचुएशन. वहाँ पे क्या हो रहा है, पायलट्स को लाइसेंस देने का काम भी डीजीसीए करती है. तो सेम थिंग, हम जब ड्रोन उड़ाते हैं तो ड्रोन हवा में उड़ाते हैं. इट्स लाइक अनमैन्ड एरियल व्हीकल. सो दैट कम्स अंडर इंडियन एयर स्पेस मैप. सो डीजीसीए कंट्रोल्स दैट थिंग ऑल्सो. पायलट को लाइसेंस देना, इट वॉज बिफोर with the DGCA, but that authority is passed on to RPTOs. Right now, RPTOs are giving the license. License भी term interchange हो गया with the certificate. अभी ये जो RPC है, Remote Pilot Certificate, पहले ये license था. That terms was changed in Drone Amendment Rules 2022. Okay. So जो भी rules and regulations है, वो सारे DGCA से आते हैं. So इवन जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यू कैन फाइंड इट इन द डिजिटल स्काई पोर्टल इन द रेगुलेशन टैब. ठीक है. राइट. राइटली सेड सर. एंड इनफैक्ट आपने डीजीसीए का बात किया है, तो एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल हैव ड्राइविंग लाइसेंसेस which is issued by the Ministry of Transportation. Parallelly, every person who is flying a drone should have a drone pilot license which is issued by DGCA.
सो वही हिसाब है, लाइसेंस नहीं है और गाड़ी चला रहे हो, सो यू आर इन ट्रबल. लाइसेंस नहीं है और ड्रोन फ्लाई कर रहे हो, यू आर इन ट्रबल. Irritable. सो yes, so I think both of them, they fall under similar brackets, right? um Obviously drones एक सनराइज सेक्टर तो है, बट इसमें पर्टिकुलरली कौन से ऐसे इमर्जिंग ट्रेंड्स है और व्हाट आर द एरियाज ऑफ इनोवेशन विद इन द ड्रोन इंडस्ट्री जो प्रोफेशनल्स शुड कीप एन आई ऑन? ठीक है, कि ये पर्टिकुलर एरिया है ड्रोन्स में जहां पे मुझे फोकस करना चाहिए, यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ हो सकता है. व्हाट आर दोज एरियाज अकॉर्डिंग टू यू? So if you're talking about India only, तो इंडिया में आई थिंक आरपीटीओ इज गोना बी नेक्स्ट बूमिंग सेक्टर अकॉर्डिंग टू मी. एंड अभी चल रहा है, मीन्स इट्स गोना बूम बिकॉज लास्ट ईयर एक न्यूज़ आया था कि इंडिया विल रिक्वायर 1 लाख पायलट्स इन नेक्स्ट ईयर. राइट. सो अभी अगर चेक करोगे तो राइट नाउ देयर आर समवेयर अराउंड 4,000 to 4,500 pilots who got registration. दूसरा सेक्टर है इज अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. राइट. राइट. सो जैसे कि DJI बैन किया, बट DJI होल्ड्स द 70% कैप इन ओवरऑल मार्केट. वॉट एवर द टेक्नोलॉजी दे आर प्रोवाइडिंग, अभी मार्केट में उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी और उतना ज़्यादा एडवांस फीचर्स अभी कोई इंडस्ट्री नहीं दे रही, मतलब कोई भी कंपनीज नहीं दे रही. राइट. So that technology should be come into India, means हम उससे derive तो कर सकते हैं, we can get the inspiration from that technology and we should be able to manufacture in-house only. So made in India जो हम बोलते हैं, it's not completely made in India, it's basically assembled in India. 70% parts, 80% parts are still importing from the China only. ये type certification में ये बोलते हैं कि this drone is made in India, it's not. और ये ट्रू फैक्ट है. राइट. ट्रू. I think these are some of the dirty secrets of the industry where, right, although we call it as make in India, it's assembled in India. But obviously ये एक मौका देता है entrepreneurs को कि वे they should focus more on indigenous technologies. And I think एक बोलते where there are problems are the areas where opportunities lies at the end of the day. So I think that is something that all the entrepreneurs or aspiring drone professionals could look up to. Now, when people think about drones, वो लोग ये तो समझते कि चलो मैं सर्टिफिकेशन करूंगा, I'll be a pilot at the end of the day. But उसके बाद जनरली करियर प्रोग्रेशन कैसे होता है लोगों का? Is there any particular path which they go through? जैसे अभी पायलट हो गए, फिर कल सीनियर पायलट हो गए, कल कुछ और हो गए. Are there any noticeable career advances that you have seen in this drone industry? a very nice question. So in terms of if you're talking about the RPTO and instructor, so instructor बनने के बाद you were assigned as a chief flying officer, CFI and deputy CFI. So कोई भी RPTO में 2 इंस्ट्रक्टर होने चाहिए. तो जैसे आप इंस्ट्रक्टर बन जाते हो तो आपका डेजिग्नेशन बाद में आरपीटीओस के अकॉर्डिंग चेंज होता है. सो जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं दैट इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय CFI, आरपीटीओस चलाना, एंड डेप्यूटी CFI विल बी अ सपोर्टिंग स्टाफ यू कैन से. उसके बाद आपका सेक्टर आता है जब आप आपके पायलट के बेसिस पे आपके फ्लाइंग आवर्स बढ़ाते हो. सो आपको एक लॉग बुक दिया जाता है बेसिकली. सो सेम थिंग कमर्शियल पायलट्स को भी अपने फ्लाइट लॉक करने पड़ते हैं. तो जितना आप फ्लाइंग करोगे उतना आप एक्सपीरियंस पायलट कहे जाओगे. सो अकॉर्डिंग टू योर फ्लाइंग आवर्स आपका सैलरी और आपका प्रोफेशनल और आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा. सो दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. एंड आपकी जो लॉग बुक है इट्स लाइक अ बाइबल फॉर यू. राइट. तो आपको भी मिला होगा तो कीप इट सेफ विथ यू. ठीक है. राइट. ट्रू. यस. इफ यू आर इंडिविजुअल आई गेस आप ड्रोन खरीद के यू कैन रजिस्टर दैट ड्रोन एज अ मॉडल UAN एंड यू कैन फ्लाई इट इंडिविजुअली. ग्रीन जोन में नहीं तो you can fly with the permission. With the permission. So that is one of the important thing. Another important thing,
or important sector I can highlight is the AI sector. So autonomous drone flying is getting popular. जो deliveries है हमारे Amazon use कर रहा है अभी. So it's getting popular. There is a company called Zipline. So Zipline is another company who delivers medicines from one point to another. So that is another important thing. So उसमें और innovative आप कैसे कर सकते हो? So that is a booming sector as well. Perfect. And I think you have opened a Pandora box by talking about drones and AI. Definitely, thanks for bringing that up to everyone listening. I think the next phase of drone chapters could be around autonomous flying, जैसे सर ने अभी just बोला है, ठीक है? And definitely, these are a couple of areas where young aspirants who are listening to this podcast could see a lot of future growth into. Thank you so much, Omkar sir, on this wonderful insight. We are almost reaching towards the end of this podcast, and there is a ritual that we follow. Okay, or that is a ritual that we would rather want to start with, is what is called as the rapid fire round. Okay. Sure. तो इसमें यही डिफरेंस है कि आपको कोई गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा, कॉफी विद करण वाला नहीं है ये, बट डेफिनेटली दिस इज समथिंग दैट वी वुड like to hear your views upon. So I'm going to ask you 5 rapid fire questions, and I would like your honest answers onto it. Okay. My first question to you is, which DJI drone are you a fan of? The new one, Inspire 3. Inspire 3, right? Right. Right. Yes, I mean, it's a dream for cinematographers at the end of the day Right. to In own terms an of Inspire. cinematographer, I guess that is good. But अगर आप ओवरऑल कोई भी एक अच्छा ड्रोन बोलोगे, लाइक जो भी सर्वे के अकॉर्डिंग अच्छा होगा और सिनेमाटोग्राफी के, सो दैट इज M30 फॉर मी. Wow. M30. Yes, lot of fans, M30 fans could sort of look into it. Right. What do you enjoy more? Beaches or mountain? Mountains, definitely. I would rather tease you कि पुणे में तो समुंदर ही नहीं है. तो but yes, mountains is my personal favorite as well. Right. My third question to you is, what is the biggest lie that you have heard about drones? Drones के बारे में सबसे झूठी चीज क्या सुनी है आपने? इसके बारे में सबसे झूठी चीज कि ड्रोन्स रेंज में फ्लाई नहीं कर सकते. Drones range में fly नहीं कर सकते. Right. Perfect. Right. If you want to pick up any drone startup in India which could go big in the next 1 to 2 years, and don't tell me Dronacharya, आपके हिसाब से कौन सा वो startup रहेगा which is going to go big in the next 1 to 2 years? If I want to say the company name or sector, you can. I mean, I won't put you into a spot of bother of company. आप एक sector के बारे में बोल सकते हो. चलो. मैं RPTOs ही बोलूंगा. RPTOs ही बोलूंगा. हाँ, वहां से ही आपका bread and butter चलता है, तो let's call it as RPTO. Right. ठीक है. My final question to you is, what is the best thing that you like about your job? The best thing is the people which came for the training, like you. जो भी अभी trainees आते हैं, we interact with different sectors of the people जो भी नए नए sectors से आते हैं, उनसे भी उनके experience हमको बहुत ज़्यादा मिल जाता है. They share their experience, they share their incidents. कोई already flyer होता है which came for the certifications. So उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की थी. So they also tell the facts. Right, that is right. the most important thing. Means interacting with the different kinds of people from all over the India, not just from Maharashtra, from all over the India. For all over the India. I think ये same चीज मैंने आपके साथ भी feel की थी when I came for the drone training. I think I learned a lot from you and through the teachings that you have given. So thank you so much, sir, for being part of this podcast and making it super duper hit as our first podcast. Thank you so much, Omkar, sir. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you so much for inviting me, guys. Thank you. Thank you.